हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 में कुछ एक टॉपिक्स ही रहते हैं जो आप अपने आप प्रिपेयर कर लेंगे। कोई सजेशन चाहिए तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी शेल प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर 3 में है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये एक ही चैप्टर है जिससे कंप्लीट यूनिट 3 है। कुछ पार्ट सुमिता भदास से लेंगे, एक दो टॉपिक हैं जो हम यशवंत कनेतकर से लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई एम स्टार्टिंग हियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. So, who is system administrator? First of all, the root user that create your account or the root account, that is called super user. The administrator has vast powers, having access to practically everything. Success and stability of any Unix installation depends in great measure on the effectiveness of the system administrator. As your paper is also system administration, so this part is very important for you. Today, every user must know some of the important administrative functions that may be called upon to perform at any time. The job of the system administration involve management of the entire system, ranging from the maintaining user account, security, managing the disk space, to perform backup. The burden is not overwhelming, means it's not so uh, just a you can say more work, though because Unix is more easily maintained and well documented than most other systems. Unix get greatly fragmented in this area, and POSIX make no attempt to address administrative issues. So we will start. The topics are login to root. कैसे आप login करेंगे, अगर super user कैसे बनेंगे, अगर ordinary user से आपने account login किया हुआ है, how you will get the facilities. So next is administrators power in changing file attributes, add cron, user add. We will discuss one by one. So first one is root user. So, who is root user? So जब भी कोई भी Linux edition हम use करें, there is a special account that is root. So root username is standard. Password will be assigned at the time of installation. So Unix system provide a special login name for exclusive use only for the administrator, that is called root, and this account does not need to be created but comes with the system. Its password is generated at the time of installation, as I told you. The prompt will be hash. जबकि आपका सी शेल है तो परसेंटेज होगा और बैश शेल है तो डॉलर होगा ऑर्डिनरी यूजर के लिए. Once you place in the root's home directory, depending upon the system, the directory can be /root. तो हमने बहुत बार क्लास में काम किया है तो देखा है /root is the home directory for the super user. On modern system, अब यहाँ पर देखना है हमें, अगर हम path लिखते हैं on modern system, most administrative commands are resident in sbin user than sbin. जब भी कभी आप रूट से लॉगिन हो और आप लिखें echo space $path की path कैपिटल में, तो आपको कुछ ऐसी डायरेक्टरीज की लिस्ट आएगी. मीन्स जो एग्जीक्यूटेबल कमांड्स है सुपर यूज़र की वो कुछ एसविन में गिवन है, और ऑर्डिनरी कमांड्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम द ऑर्डिनरी डायरेक्टरीज दैट आर बिन यूज़र. सो जहाँ एस लग गए दैट इज सुपर यूज़र. Since the super user has to constantly navigate the file system, it is possible that he might execute program and script written by other users. That's why path for a super user doesn't include the current directory. ठीक है, तो उस पाथ में अपने अलावा जितने भी सब डायरेक्टरीज हैं वो इसमें गिवन है. नेक्स्ट वन इज इफ़ यू आर नॉट ए सुपर यूज़र, यू आर वर्किंग एज अ ऑर्डिनरी यूज़र. कई बार हमें ऐसा रिक्वायरमेंट हो जाती है कि सपोज ऐड और क्रॉन की बात हम कर रहे थे कि ऐड और क्रॉन सर्विस आपके यहाँ नहीं चलती है, या कोई दूसरी टास्क हमें परफॉर्म करवानी है, लेकिन आप अपने ही स्टेशन पर बैठे हुए, अपने ही सिस्टम पर बैठे हुए सुपर यूज़र की हेल्प लेना चाहते हो, तो सुपर यूज़र आपके अकाउंट पर, आपके टर्मिनल पर भी सुपर यूज़र फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है. जैसे कि अभी आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट है डॉलर के बाद हम लिखते हैं SU कमांड. SU मीन्स एक्वायरिंग सुपर यूज़र स्टेटस. सुपर यूज़र पासवर्ड यहाँ एंटर करना होगा. तो सुपर यूज़र का पासवर्ड हमेशा सीक्रेट रखा जाता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप काम करें. नेवर शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन. तो यही मेन है जिससे पूरे सर्वर की सिक्योरिटी हो सकती है. पासवर्ड आफ्टर एंटरिंग द पासवर्ड द प्रॉम्प्ट चेंज. अब प्रॉम्प्ट चेंज करके हम देखें तो PWD देखा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी भी जूलियट की ही है. मीन्स अगर जूलियट कोई यूज़र है
वो अपनी होम डायरेक्टरी में है, तो होम डायरेक्टरी अभी भी जूलियट की है, सिर्फ क्या हुआ, जो शेल जूलियट के लिए खुला हुआ है उसके अंदर एक और शेल क्रिएट हो गया है, ठीक है। दो शेल चल रहे हैं अभी, एक शेल एनवायरनमेंट किसके लिए, ऑर्डिनरी यूज़र के लिए, दूसरा सुपर यूज़र के लिए। जब यहाँ से इसको एग्जिट करना है तो हमें एग्जिट लिखना होगा, ठीक है। तो एग्जिट लिखेंगे तो वापस ये डॉलर वाला प्रॉम्प्ट आ जाएगा। क्रिएटिंग ए यूजर्स एनवायरनमेंट, the administrator first tries running it in a simulated environment. So su creates super simulated environment when used with a minus sign recreate users environment without taking the login password. मतलब अगर आप सुपर यूज़र है या आपके सिस्टम पर सुपर यूज़र बैठे हैं अभी और जूलियट के अलावा हेनरी का अकाउंट उसको कोई डील करना है, हेनरी की कोई फाइल्स में चेंजेस करने, एस यूज माइनस देन यूज़र नेम अनदर यूज़र नेम, राइट। तो अगर यहाँ पर अमन के अकाउंट से हम सुपर यूज़र का लॉगिन करते हैं और यहाँ से हम डील करना चाहते हैं अनमोल का अकाउंट, एस यू माइनस अनमोल। सो दिस सीक्वेंस एग्जीक्यूट हेनरीज मीन्स अनमोल्स प्रोफाइल, और उसी के अकॉर्डिंग आगे का वर्क चलेगा। तो किसी एक लॉग प्रॉम्प्ट से हम सुपर यूज़र की परमिशन भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे स्टूडेंट्स, अगर सुपर यूज़र एस यू कमांड से हमने अपने ऑर्डनरी अकाउंट से अक्वायर भी कर लिया तो भी आप कुछ कमांड्स को रन नहीं कर पाएंगे। कुछ कमांड जैसा कि यूज़र ऐड, यूज़र डिलीट, आप ट्राई भी कर लीजिएगा। ऑर्डिनरी यूज़र से लॉगिन किया फिर सुपर यूज़र की परमिशन एक्वायर करेंगे इस मेथड से, तो आप काफ़ी कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट आता है, ये 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और द फंक्शंस ऑफ सुपर यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ये क्योंकि आपका पेपर भी यही है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। सो सुपर यूज़र हैज़ number of powers and any command invoked by him has a greater chance of success when issued by when issued by others. Means whenever a super user give command, the chances are more to be for success because the super user have full power. Moreover, there are several commands reserved for his exclusive use जो वही यूज़ कर सकता है। अब देखते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। फर्स्ट वन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पॉइंट बना लीजिएगा एक एक करके। change the contents or attributes of any file like its permission, ownership, and he can delete any file with RM even if it is write protected. First thing, यहाँ पर change the content or attribute of any file. It means so next one is after changing permissions, we will see practically here some commands other than chmod. Second one is initiate or kill any process. Super user have full power to kill any process of any user. Administrator can directly kill all process except the one essential for running the system. Means daemons should not be deleted because they can harm the regular processing. Otherwise, super user is authenticated to kill any user's process. Change any user's password without knowing the existing one. Whenever a user forget his or her password, he can directly go to administrator. Administrator can change password PASSWD without knowing his or her old password. या आपने चेंज भी करके देखा है, जब भी पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो रूट यूज़र से लॉगिन करते हैं और फिर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं without providing the old password. The command does not ask the old password. Setting the date and time, addressing all the users using wall command, providing limit to the users with ulimit, and add and cron जैसे हमने प्रोसेस चैप्टर में भी डिस्कस किया था। add and cron, add ये दोनों कमांड्स हमारी शेड्यूलिंग कमांड्स है, बट जिस यूज़र का नेम add.deny में आ गया या cron.deny में, उस यूज़र को ये कमांड्स अलाउड नहीं होंगे। Control user access to many networking services like telnet and FTP etc. So first we are dealing with the changing date. डेट कमांड से हमने जिस टाइम डेट कमांड डिस्कस की थी तो वहाँ ये भी बोला गया था कि डेट कमांड जो है डेट एंड टाइम सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही चेंज कर सकता है। अगर आप रूट से लॉगिन है देन ओनली यू कैन चेंज द डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम के लिए मेन हमें देखना है फॉर्मेट MM, उसके बाद सेंचुरी का 4 के लिए ऑप्शन आता है। सेंचुरी ऑप्शनल है, आप सेंचुरी चेंज करना चाहें तो मंथ, डेट, आवर्स एंड मिनट्स।
तो सबसे पहले तो ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सिंबल हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर चैप्टर में हैश ही आएगा जो प्रॉम्प्ट है, डेट, और उसके अकॉर्डिंग हमने ये डेट का फॉर्मेट रखा है। दैट इज डेट इज फर्स्ट वन इज एम 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 मीन्स मंथ, जनवरी, 09 डेट, 21 आवर्स, देन 24 मिनट्स। तो अगर सेंचुरी भी आपको चेंज करनी है तो उसके बाद 4 डिजिट लिख सकते हैं, 2 डिजिट भी लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज वॉल कमांड, कम्युनिकेटिंग विद यूजर्स। वॉल कमांड एक ऐसी कमांड है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो ये पूरे नेटवर्क में एक मैसेज को स्प्रेड कर सकता है, दैट इज़ अ ब्रॉडकास्ट कमांड। सो वैसे तो ये कमांड ब्रॉडकास्ट कमांड है, लेकिन अभी हमारे रेडिट में ये सभी यूजर्स के एंड पर चल रही है। हाँ, कोई भी यूज़र वॉल कमांड से मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकता है, सिर्फ उसमें क्या होगा, यूज़र ने किस टाइम ब्रॉडकास्ट किया और किस यूज़र ने ब्रॉडकास्ट किया वो पूरा डिटेल आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मशीन शटडाउन करनी है उससे पहले आपको कोई मैसेज सेंड करना है तो इस तरह का मैसेज सेंड कर सकते हैं। लेकिन वॉल में भी क्या है, वॉल फिर एंटर कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए और एंड इट विद द कंट्रोल डी। ठीक है, तो इस तरह से वॉल कमांड आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन यूसेज इज डिफाइनिंग द लिमिट ऑन फाइल साइज। Faulty program or negligence can eat up the disk space, so ulimit command impose a restriction on the maximum size of a file that a user is permitted. आप अगर अपनी यहाँ सिस्टम पर ये कमांड ट्राई करेंगे ulimit, it will be unlimited। ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्पेसिफाई इन बाइट्स। तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं, तो मैं यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, ये जो साइज़ है इसके अकॉर्डिंग 512 बाइट का एक ब्लॉक है। हमारे यहाँ जो लाइनिक्स है रेडिट उसमें 1024 बाइट का एक ब्लॉक है। यू विल ऑफन प्लेस दिस स्टेटमेंट ETC प्रोफाइल सो दैट एवरी यूजर हैज़ टू वर्क विद इन दीज रिस्ट्रिक्शंस व्हेन यूज्ड बाय इटसेल्फ यू लिमिट डिस्प्ले करंट सेटिंग, राइट। तो अगर उस लिमिट से बाहर कोई अगर यूज़ करेगा तो लिमिट सेटिंग्स के अकॉर्डिंग उसको रिस्ट्रिक्शन मिलेगी। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग यूज ऑफ ऐड एंड क्रोन। आई थिंक ये तो बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था उस टाइम भी। एक्सेस टू द यूजर एट ऐड एंड क्रोन एट बैच इज रिस्ट्रिक्टेड टू बाय द फाइल ऐड डॉट अलाउ एंड ऐड डॉट डिनाई। और ETC के अंदर ये दोनों फाइल्स होंगी, ऐड डॉट अलाउ, ऐड डॉट डिनाई भी, और cron डॉट डिनाई और cron डॉट अलाउ भी। If add dot allow is present, only the user listed in the file are permitted to use add and batch. If neither file is present, nor the administrator is permitted to invoke add and batch. ठीक है, add dot deny और add dot allow नहीं है तो आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा और कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। क्रोन भी एक शेड्यूलर था, इसका भी हमने एग्जांपल लिया था। स्टूडेंट्स प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जिनके पास लाइनेक्स है वो जो प्रोग्राम मैंने थोड़ा बहुत छोटा मोटे बनाए हैं, बताए थे आपको प्रोसेस चैप्टर में, उनको रन करें तो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से कमांड समझ आएगी। क्रोन शेड्यूलर इज यूज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर टू मेक कमांड्स लाइक फाइंड एंड DU। फाइंड कमांड हमने अभी तक नहीं की है, फाइंड कमांड कंप्लीट अपने आप में एक पूरा लेक्चर ही है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे बिल्कुल एंड में। और DU इज़ ए फाइल मैनेजमेंट कमांड जो आज मीन्स इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, आज नहीं फिर कभी। लाइक ऐड एंड बैच, the authentication to use it is controlled in identical manner by two files, cron.allow and cron.deny। ये भी कहाँ प्रेजेंट है, ETC के अंदर। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट मेंटेनिंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, सिक्योरिटी फीचर ऑफ लाइनेक्स। तो उसमें आप सब बताते हैं यूज़र नेम, लॉगिन, पासवर्ड, उसके बाद आप फाइल परमिशंस, उसके बाद थर्ड कैटेगरी आ जाती है इनक्रिप्शन की। तो यहाँ पर मेंटेनिंग सिक्योरिटी में चेंजिंग एनी पासवर्ड, तो ये भी हमने अभी पहले पॉइंट डिस्कस किया था कि किसी यूज़र का अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो पासवर्ड यहाँ से चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप रूट यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है तो आपको सिंपल कमांड लिखनी है पास WD। लेकिन अगर किसी सुपर यूज़र सिंपल यूज़र का करना है तो लिखना होता है पास WD एंड द यूज़र नेम। क्लियर, तो ये थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है जब हम सुपर यूज़र से लॉगिन किया होता है, हम ऑर्डिनरी यूज़र का पासवर्ड चेंज करें तो पास WD देन यूज़र नेम, और इस कमांड के साथ आप सुपर यूज़र का पासवर्ड चेंज करें। चेंजिंग पासवर्ड फॉर रूट, एंटर द न्यू पासवर्ड, और रीटाइप करवाएगा आपसे, उसके बाद ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट वन इज पासवर्ड। ये जैसे आपको मेंशन किया कि किसी ऑर्डिनरी यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है तो क्या करेंगे, पास WD, हेनरी नेम है तो हेनरी। सो पासवर्ड डज नॉट प्रॉम्प्ट फॉर ओल्ड पासवर्ड, pass WD command does not prompt for old password when the command is used by super user for changing the root password or even some other users password. Next one is these two main commands, जिसको हमने बोला कि स्पेशल परमिशंस, फाइल की कुछ परमिशंस आप स्पेशल रखेंगे
ch मोड या u मास्क जब हमने डिस्कस किया था तो u मास्क हमने लिया था 0022, तो आपको बोला गया था जो MSB 0 इसको अभी इग्नोर कीजिए। तो अब टाइम आ चुका है कि उस MSB वाले 0 को अंडरस्टैंड करें हम यहाँ पर। आप देखिएगा, recall the discussion on the process attribute when we mentioned sometime the effective user ID may not be the same as a real UID. The time has come to discuss a special security feature which explore this fact. Many Unix programs have a special permission mode that let users to update sensitive files like etc shadow. जब आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो पासवर्ड चेंज किया, इट मीन्स यू आर एक्सेसिंग दिस फाइल, लेकिन रियल टाइम में वो जो प्रोसेस है वो किसके पास है, रूट के पास। शेडो को सिर्फ कौन देख सकता है, सिर्फ सुपर यूज़र, और शेडो वो फाइल है जिसमें आपके पासवर्ड रहते हैं। सेम वे ETC पास WD हम देखते हैं, ETC पास WD में क्या सभी यूजर्स की डिटेल है। तो अब यहाँ पर अगर हम LS-L से देखें तो यहाँ देखिए क्या मिला, RWS, S मीन्स सेट यूज़र ID, यूज़र है इसका रूट और ग्रुप नेम है शेडो। तो यहाँ पर जब इस फाइल को कोई भी ETC पास WD कमांड रन करता है, कोई भी यूज़र, या सिंपल पास WD कमांड भी आप रन करते हैं, तो उस टाइम पर रियल ID किसका चलता है, रियल ID चलेगा वहाँ पर जो यहाँ मेंशन्ड है कि जिसने लॉगिन किया हुआ है, और इफेक्टिव ID किसका चलेगा, सुपर यूज़र का। The letter S in the user category of permission field represent a special mode known as the set user ID. This mode let a process has the privilege of owner of the file during the instance of the program. Means जिस टाइम कोई भी ऑर्डिनरी यूज़र इसे यूज़ करेगा पास WD कमांड को, तो उस टाइम पर ये उस टाइम पर उसको ऑनर के फॉर्म में ऑनर ऑफ द फाइल डिक्लेयर करेगा। When a non-privileged user execute pass WD, the effective user ID of the process is not the users. यही मैंने आपको बताया, रियल, ठीक है, रियल किसका रहेगा, जिसने लॉगिन किया। सपोज यहाँ पर हमारे स्टूडेंट विजय ने, किसी ने लॉगिन किया और वो पास WD से पासवर्ड चेंज करता है, तो पासवर्ड चेंज करते हुए जिस टाइम उसका रियल प्रोसेस ID है वो किसके नेम से चलेगा, विजय के नेम से, लेकिन जो इफेक्टिव यूज़र ID वो किसका रहेगा, सुपर यूज़र का। सो the effective user ID of the process is not the users but of root, the owner of the program, because इस फाइल का जो ओनर है वो कौन है, only the super user. So set user ID for any file can be set only by the super user with a special syntax of chmod command. chmod command हमने पहले भी की है, लेकिन आज हमारा ये नया सिंटेक्स स्टार्ट होगा, दैट इज सेट यूज़र ID। किसी एक फाइल को अगर आप असाइन करेंगे chmod u+s, या तो हम u+s करें या हम करें यहाँ पर 4755, ये जो अब 0 हमने इग्नोर किया था उस टाइम, अब टाइम आ गया इसको, इस बिट को, अदरवाइज हमने 3 ऑक्टल वैल्यूज़ यूज़ की, अब हम यूज़ करें 4 ऑक्टल वैल्यूज़। 4 इंडिकेट सेट यूज़र ID, और अगर ग्रुप ऐसे ही सेट करना है, ग्रुप का भी सेट करना है, तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पर सेट ग्रुप, तो chmod g+s। क्या यूज़ किया यहाँ पर, यूज़र सेट यूज़र ID करना है कि यूज़र रियल अलग हो, इफेक्टिव अलग हो, इसके लिए u+s या 4 जो नोटेशन है दैट इज़ फॉर सेट यूज़र ID। बट अगर सेट ग्रुप ID आपको सेट करना है तो क्या करेंगे, chmod g+s जो फाइल नेम है, या फिर chmod 2 इज़ द नोटेशन, ऑक्टल नोटेशन टू सेट द ग्रुप ID की फाइल एक्चुअल में किसी और की है, लेकिन ग्रुप रियल टाइम पर रियल किसका दिखाई देगा, जो ग्रुप आप जिसके लिए आप ये परमिशन सेट कर रहे हैं, मीन्स सेट ग्रुप ID, ग्रुप में कोई भी यूज़ करे। सो सेट यूज़र ID mechanism invented by Dennis Rich is a potential security hazard. It let a user acquire hidden powers by running such a file owned by the administrator. As administrator, you must keep track of all SUID program owned by the user. ऐसा ना हो कि आपकी पर्सनल फाइल से, पर्सनल फाइल मीन सिस्टम फाइल से, उनको कोई भी यूज़र ID, सेट यूज़र ID और सेट ग्रुप ID से उसका यूज़ कर पाए, मिस यूज़ कर पाए। तो आपको अगर फाइंड करनी है तो फाइंड कमांड इन्होंने दी हुई है, यहाँ थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। फाइंड में क्या होता है, फाइंड, उसके बाद पाथ देना होता है, पाथ मीन्स फ्रॉम होम डायरेक्टरी, उसके बाद इसने एक सिलेक्शन का मेथड है परमिशन, परमिशन आपने दी यहाँ पर -400 मीन्स 4 जिसकी ऑक्टल वैल्यू स्टार्टिंग में है, 00 तो मतलब कोई भी चलेगी, लेकिन स्टार्टिंग की वैल्यू क्या हो 4, उनको प्रिंट करें, और आगे कमांड दी है पाइपलाइन में मेल रूट, उनको मेल किया जाए रूट को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
स्टिकी बिट, ये दो मेन है, स्टिकी बिट और सेट यूज़र आईडी। अब स्टिकी बिट के लिए एग्जांपल लेना होगा। स्टूडेंट्स, आपको बोला गया था एक बार कि वैर देन टेम्प, या हमारा एक ऐसा फोल्डर है जिसमें कोई भी फाइल बना सकता है। तो वैर देन टेम्प के अंदर कोई भी फाइल बना सकता है, और किस तरह से बना सकता है देखिए। अब यहाँ पर मान लीजिए अभी लॉगिन किया हुआ है, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर एक मिनट एग्जांपल ले लेते हैं। ये लीजिए, मान लीजिए अनिल नेम यूज़र ने लॉगिन किया, ठीक है। उसने अपने प्रॉम्प्ट से एक फ़ाइल बनाई, कैट ग्रेटर देन, कहाँ बनाई, वैर देन टेम्प, या टेम्प में भी बना सकते, दोनों ही डायरेक्टरी अलाउड है। और यहाँ पर जो भी टाइपिंग की उसके बाद कंट्रोल डी किया, टेम्प के बाद F1 फाइल का नेम मेंशन किया, क्योंकि टेम्प के अंदर फाइल नेम तो मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। हो गया, चलिए इसने बना दी। वहीं पर कोई दूसरा यूज़र है, अमर नेम यूज़र भी एक फ़ाइल बनाता है, और वो फाइल नेम देता है कैट ग्रेटर देन वैर देन टेम्प देन F2, ठीक है। ये दूसरे यूज़र लॉगिन आईडी से बनाना है। अब क्या हुआ, जब आप लिस्टिंग करेंगे ls-l या ls कमांड भी यूज़ करें, देन वैर देन टेम्प। यहाँ पर अगर टेम्प से आप देखना चाहें, वैर देन टेम्प, इसकी कमांड, इसकी फाइल्स को आप ls-l करेंगे तो जो F1 फाइल है उसका ऑनर मिलेगा अनिल, और F2 फाइल है उसका ऑनर मिलेगा अमर, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए आप अनिल से लॉगिन किया हुआ है, आपने अनिल से लॉगिन किया हुआ है, और आप लिखते हैं वहाँ पर rmf1, क्योंकि अनिल की फाइल है, डिलीट हो जाएगी। कहाँ पर है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर हमारी कमांड ऐसे नहीं जाएगी, rm वैर देन टेम्प देन F1, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब अनिल चाहता है कि वैर देन टेम्प देन F2, इसको डिलीट किया जाए, तो यहाँ मैसेज आएगा दिस इज़ नॉट अलाउड, परमिशन डिनाइड, जो भी रीज़न रहा है। सेम वे अगर यहाँ अमर ने लॉगिन किया और उसने कंटेंट देखे, कंटेंट दोनों के दिखाई देंगे, और आगे उसने यहाँ पर डिलीट करना चाहा rm वैर देन टेम्प देन F2 डिलीट हो जाएगी क्योंकि उसकी खुद की फाइल है, लेकिन F1 डिलीट करना चाहेगा तो परमिशन डिनाइड आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है स्टिकी बिट का, कि एक ऐसी डायरेक्टरी हमने रख दी, हर कोई अपना मटेरियल वहाँ रख तो सकता है, लेकिन सिर्फ डिलीट अपना ही कर सकता है। तो यही ऐसा ही प्रोविज़न होना चाहिए कि जब हमें ग्रुप में प्रोजेक्ट करना होता है तो ऐसा हो कि ग्रुप शेयरिंग तो हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके बनाए हुए प्रोग्राम को कोई डिलीट कर दे। रीड कर सकते हैं बट डिलीट नहीं कर सकते। चलिए अब इसको देखते हैं इन्होंने क्या मेंशन किया है। द स्टिकी बिट is the last permission bit remaining to be discussed. It is applied to both regular file and directory. When applied to a regular file, it ensures that the text image of a program with the bit set is permanently kept in the swap area so that it can be reloaded quickly. ये हमारा एग्जांपल है कि जैसे VI एडिटर है, ये बहुत सारे यूज़र यूज़ करते हैं, तो VI का कोड है वो आपका स्टिक के बिट से सेट कर दिया जाता है। Previously, it made sense to have this bit set for the programs like VI and Emac. ये भी एक एडिटर ही था. So today mechanism with ultra fast disk drive, lot of cheap memory, doesn't need this bit for ordinary files. So where is we are using this bit? The sticky bit become a very useful security feature when used with a directory. और directory में भी कैसे? This directory, these two directories are standard directory, temp and where and then temp. बट वन कैन डिलीट, यहाँ पर क्या कहते हैं ये, द यूनिक्स सिस्टम अलाउ यूजर्स टू क्रिएट फाइल्स इन दीज टू डायरेक्टरी बट नो वन कैन डिलीट फाइल नॉट ओन्ड बाय हर, मतलब जिसके पास जिसकी फाइल है वही डिलीट कर सकता है, कोई दूसरा यूज़र नहीं. स्ट्रेंज दैट्स पॉसिबल बिकॉज बोथ डायरेक्टरी हैव देयर स्टिकी बिट सेट. तो यहाँ पर देखा अगर आप एल में, ये तो आप अपने यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, ls-ld, क्योंकि डायरेक्टरी है तो डी लगाना पड़ेगा, टेम्प स्पेस वेयर देन टेम्प. तो यहाँ देखेंगे लास्ट में टी मिलेगा, दैट इज स्टिकी बिट. सो डायरेक्टरीज आर राइटेबल बाय ऑल बट दिस एक्स्ट्रा टी बिट
इंश्योर दैट कुमार कैन नॉट रिमूव शर्माज फाइल। अगर दो यूजर्स हैं तो वो अपनी अपनी फाइल डिलीट कर सकते हैं, वो एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको मेंशन कर दी है। और ये अगर किसी भी एक डायरेक्टरी को आप शेयर डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं मल्टीपल यूजर्स के थ्रू, तो एक तो उसकी परमिशंस देखिए, रीड राइट एग्जीक्यूट सब आप सेट करेंगे। साथ में लास्ट में टी जो है ये रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते हैं 775 दिया इन्होंने, यहाँ पर 1 भी देना होगा। मीन्स वो यू मास्क का जो स्टार्टिंग का 0 था वो अब यहाँ पर क्या होगा, इस फाइल के लिए 1775। ठीक है, ये मेथड आप यूज़ करेंगे। सो यू प्लस टी भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने यही दिया हुआ है। सो द स्टिकी बिट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स टू लेट ए ग्रुप ऑफ यूजर्स वर्क ऑन ए सेट ऑफ फाइल विदाउट इन्फ्रिंगिंग ऑन सिक्योरिटी। तो कैसे काम किया जाता है, पहले कॉमन ग्रुप बनाया जाता है, सेपरेट यूज़र अकाउंट बनाए जाते हैं, बट होम डायरेक्टरी सबकी कॉमन रखी जाती है। और उस कॉमन डायरेक्टरी को मेक द श्योर द होम डायरेक्टरी एंड ऑल सब डायरेक्टरीज आर नॉट ओन्ड बाय एनी ऑफ द यूज़र। किसी को भी उसकी परमिशन सबको मेंशन नहीं करना है। सी एच ऑनर टू सरेंडर ऑनरशिप टू द रूट, उसकी ऑनरशिप सिर्फ किसके पास होगी, रूट के पास। और इस डायरेक्टरी को क्या हम बना देंगे, ग्रुप राइटेबल। एंड सेट द स्टिकी बिट विद सी एच मोड 1775। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोजेक्ट वर्क में ये बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड सेपरेटली, राइट ए डिटेल नोट ऑन यूज़र मैनेजमेंट। तो यूज़र मैनेजमेंट को हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ये हम क्लास में बहुत बार ले चुके हैं। हाउ टू क्रिएट ए यूज़र अकाउंट। तो यूज़र जब क्रिएट होता है तो ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है। एक यूज़र आईडी ये हम मेंशन नहीं करते, मैनुअली करना है तो कीजिए। ग्रुप आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, वैसे होम डायरेक्टरी मेंशन कर सकते हैं, ये भी अपने आप क्रिएट हो जाता है। लॉगिन शेल आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। मेल बॉक्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, पासवर्ड हमें सेट करना होता है। देखिए सबसे पहले तो अगर आप किसी यूज़र को स्पेसिफिक ग्रुप में रखना चाहते हैं तो ग्रुप बनाइए, क्योंकि ग्रुप नहीं बनेगा तो आपको बाद में मॉडिफाई करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी यूज़र अकाउंट बनता है तो उसका प्राइवेट ग्रुप बनता है। राइट स्टूडेंट्स, सो ग्रुप की डिटेल कहाँ मिलती है आपको, ETC देन ग्रुप में। ये क्लास में बहुत बार देख चुके हैं जिन्होंने क्लासेस रेगुलर अटेंड किए। तो ग्रुप में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो काम के, हमारे काम के नहीं, इन द सेंस दीज आर आवर सिस्टम यूसेज। राइट, तो ग्रुप की जो ग्रुप आईडी है वो भी एक इसमें थर्ड फील्ड है जो ग्रुप आईडी है। तो यहाँ पर हमें देखना है ग्रुप ऐड करना है तो क्या करेंगे, -G। और अगर अपनी मर्जी से कोई ग्रुप आईडी देना चाहते हैं तो -G241 और ग्रुप का नेम है DBA। अदरवाइज अगर आपको सिंपल ग्रुप क्रिएट करना है, सपोज BCA थर्ड, तो ग्रुप ऐड स्पेस BCA3। ठीक है, अब अगर यहाँ पर चॉइस देना चाहते हैं कि सिस्टम अपने आप ग्रुप आईडी बनाए तो आप सिंपल वो ग्रुप नेम लिख सकते हैं। जिसकी एंट्री चेक करनी है तो कहाँ चेक करेंगे, हम यूज़ करेंगे कैट स्पेस /etc/ग्रुप। ये एंट्री आप अभी भी चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। नेक्स्ट वन इज ग्रुप ऐड। ग्रुप ऐड करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, -U, -C, -D, -S एंड -M। चलिए, -U यूज़र आईडी के लिए, यूज़र आईडी स्पेसिफाई करना है तो -G टू स्पेसिफाई ग्रुप नेम। ठीक है, उसके बाद है -C। -C का मीनिंग है कमेंट। अगर आप किसी बॉस का अकाउंट है, किसी यूज़र का अकाउंट है या विजिटर का अकाउंट है वो आप मेंशन करना चाहते हो, -D है। होम डायरेक्टरी टू मेंशन होम डायरेक्टरी, अगर आप चाहते हो आप यहाँ पर कोई नेम बना रहे हैं, यहाँ पर जेबा नेम से अकाउंट बनाते हैं तो आप नहीं चाहते होम देन जेबा अकाउंट बने, उसकी प्लेस पर आप चाहते हो होम/प्रोजेक्ट नाम से कोई ग्रुप होम डायरेक्टरी बने, तो उस टाइम पर आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। लास्ट वन इज़ -S। -S में आपके पास चॉइस थी बिन देन SH लिखेंगे तो आपके यहाँ स्टार्टिंग क्या था, बॉन्ड शेल। के लगा दिया तो कॉर्न शेल, बैश लगा दिया BASH तो बैश शेल। सी शेल चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे, बिन देन CSH। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, आप जो आपको यूज़ करना है करिए, नहीं तो आप डायरेक्टली यूज़र ऐड स्पेस जेबा लिख सकते हैं अगर जेबा का अकाउंट हमें बनाना है। यूज़र ऐड ये सभी फील्ड्स को इन्होंने यूज़ करके दिखाया। -U फिर स्ट्रिंग जो मेंशन की न्यूमेरिक स्ट्रिंग, अगर ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग ऑलरेडी किसी यूज़र को साइंड है तो ये एरर देगा ही देगा। -G ग्रुप बनाना होना चाहिए, अगर G आप यूज़ करते हैं तो DBA, इसीलिए हमने पहले वो कमांड की। -C कमेंट, कोई भी कमेंट, लेकिन कमेंट हमेशा डबल कोट्स में। -D होम डायरेक्टरी नेम अदर देन द यूज़र्स नेम, तो जेबा नेम से अकाउंट बनाने चले तो जेबा नेम से नहीं चाहिए हमें, होम देन ओरेकल चाहिए, ओरेकल आपकी होम डायरेक्टरी बन जाएगी जेबा के लिए। -S यहाँ कॉन्शल इन्होंने साइन किया। लास्ट वन इज़
-m, तो -m का ऑप्शन देखते हैं। -m ऑप्शन इंश्योर दैट द होम डायरेक्टरी is created if it does not already exist and copies a sample.profile and ksh rc to the users home। तो ये होम डायरेक्टरी बन जाएगी, उसके साथ साथ इसका प्रोफाइल फाइल भी इसमें आ जाती है। वो आज के हमें -m की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोमेटिकली जब यूज़र अकाउंट बनता है तो साथ में उसकी जो प्रोफाइल फाइल है अपने आप आ जाती हैं। तो यूज़र नेम क्या है, ओरेकल। अब ये एंट्री बनी या नहीं बनी तो आप कैसे चेक करेंगे, कैट स्पेस या मोर स्पेस ETC देन /etc/passwd, वहाँ पर लास्ट एंट्री उसकी होगी जिसका यूज़र अकाउंट अभी अभी बना है। तो ये दोनों फाइल्स मेन है, ETC passwd एंड शेडो। ये हम बहुत बार देख चुके हैं क्लास में, क्या क्या एंट्रीज़ होती हैं देख लीजिए। इन एंट्रीज़ के अंदर यहाँ लेते हैं सबसे पहले, इस एंट्री में फर्स्ट है यूज़र का नेम, उसके बाद ये पासवर्ड x से जो हिडन है वो शेडो में मिलेगा। 210 दैट इज़ द यूज़र ID, 241 इज़ ग्रुप ID, ये कमेंट है। उसके बाद होम डायरेक्टरी और उसके बाद शेल। ये डिटेल ETC passwd के हर एक यूज़र अकाउंट के लिए रिकॉर्ड में रहेगा। शेडो में क्या होता है, शेडो कंटेन्स द पासवर्ड्स, तो ये पासवर्ड के लिए शेडो पार्ट ऐसे शो करता है। अगर हिडन है ये जो पासवर्ड है ओरेकल का, दैट इज़ इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज यूज़र, ये पासवर्ड इंक्रिप्शन इज शोन इन द सेकंड फील्ड, इट इज़ इम्पॉसिबल टू जनरेट द पासवर्ड फ्रॉम द दिस इंक्रिप्शन। ठीक है, तो ये हमने एक बार क्लास में इसको लॉक भी करके देखा था। लॉक करना है तो आप किसी पासवर्ड को लॉक करने के लिए ले सकते हैं। पासवर्ड लॉक करना है किसी यूज़र, सॉरी पहले तो हैश ले, passwd -l अमन, अमन का पासवर्ड हमने लॉक कर दिया। तो पासवर्ड लॉक करने का मीनिंग क्या है, जब ETC शेडो में देखेंगे तो पासवर्ड के सामने ये निगेशन सिंबल आ जाएगा। अनलॉक करना है तो passwd -u और यूज़र नेम अमन। ठीक है, ये मेथड रहता है कि आप किस तरह से पासवर्ड को लॉक या अनलॉक कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ यूज़र मॉडिफाई और यूज़र डिलीट। यूज़र मॉडिफाई मीन्स आज हमारे यूज़र की होम डायरेक्टरी अलग है, कल को हमें चेंज करना है या शेल चेंज करना है, तो सिर्फ जो स्पेसिफिक पार्ट हमें चेंज करना, मतलब जैसे शेल चेंज करना है तो यूज़र मॉड -s और फिर उसके बाद शेल का नेम, शेल का नेम दिया। अगर आपको ग्रुप चेंज करना है यूज़र मोड -g, अब हमें उसको रखना है MCA में, MCA स्पेस अमन। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जांपल ले रहे हैं। यूज़र डिलीट करना है तो बहुत इजी है, यूज़र DEL एंड यूज़र नेम। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। स्टार्टअप एंड शटडाउन अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा, इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।